السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پہلے سے کہیں زیادہ بہار میں سیاسی میدان مضبوط کرنے کے بعد اب بھارتیہ جنتا پارٹی کی توجہ ان ریاستوں پر مرکوز ہے جہاں اگلے 1 یا 2 سالوں میں اسمبلی انتخابات ہونا ہے۔ مغربی بنگال میں سب سے پہلے اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں، لہٰذا بی جے پی کی سب سے زیادہ توجہ اس ریاست کی طرف ہے، لیکن انتخابی نقطہ نظر سے پنجاب کو بھی بی جے پی کی ترجیحی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، جہاں 2022 کے پہلے سہ ماہی میں انتخابات ہوں گے۔ 2022 کے پنجاب اسمبلی انتخابات میں بی جے پی تمام 117 سیٹوں پر مقابلہ کرے گی۔ جموں کشمیر میں دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی فورسز نے ایک آپریشن شروع کیا ہے۔ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق نیگروٹا میں سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے اور ہر بلاک آنے والی گاڑیوں کی تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ اس دوران سیکورٹی فورسز نے وان ٹول پلازا کے قریب رکاوٹ کھڑی کر دی تھی۔ گاڑیوں کی تفتیش کے دوران دہشت گردوں کے ایک گروپ نے آج صبح 5 بجے سیکورٹی فورسز پر فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کے بعد دہشت گرد جنگل کی طرف بھاگنے لگے، پھر انکاؤنٹر شروع ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انکاؤنٹر میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بالی ووڈ کے دبنگ اسٹار سلمان خان کے ڈرائیور سمیت 2 عملے میں کورونا مثبت پایا گیا ہے۔ سلمان خان نے خود کو الگ تھلگ کر دیا ہے، یعنی سلمان خان آئسولیشن میں چلے گئے ہیں۔ سلمان بگ باس 14 کی میزبانی کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ آنے والے ایپیسوڈز کے لیے دستیاب رہیں گے یا نہیں۔ سلمان خان نے حال ہی میں رادھے فلم کی شوٹنگ شروع کی تھی۔ فلم میں اداکارہ دیشا پٹانی ان کے ساتھ نظر آئیں گی۔ ان سب کے بیچ سلمان بگ باس سیزن 14 کے میزبان کی حیثیت سے بھی لوٹ آئے ہیں۔ واضح کہ بالی ووڈ کے بہت سے مشہور شخصیات نے پچھلے 2-3 مہینوں میں دوبارہ کام شروع کیا ہے۔ فلموں کی شوٹنگ کورونا کی وبا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے رک گئی تھی۔ RSS لیڈر اندریش کمار نے مقبوضہ کشمیر اور بلوچستان سے دستبرداری کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے مقصد سے ایک مہم شروع کی ہے۔ انہوں نے جموں کشمیر کے سابق چیف منسٹر فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ سے کہا کہ وہ ترنگے کے بارے میں اپنے ریمارکس اور خصوصی موقف کی بحالی کے لیے چین سے مدد طلب کرنے پر ہندوستان کو چھوڑ دیں اور پاکستان اور چین میں بس جائیں۔ اندریش کمار نے مسلم راشٹریہ منچ کی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ گپکار اتحاد کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے RSS لیڈر نے کہا کہ جب یہ قائدین جیل میں تھے، جموں کشمیر میں کسی کو ان سے ہمدردی نہیں تھی۔ بامبے ہائی کورٹ نے محروس سماجی جہدکار اور ادیب وراوڑا راؤ کو 15 دن کے لیے ناناوتی ہاسپٹل منتقل کرنے کی اجازت دی ہے، جہاں ان کا علاج کیا جائے گا۔ اس 15 روزہ علاج کے اخراجات حکومت مہاراشٹر ادا کرے گی۔ عدالت نے ان کے ارکان خاندان کو بھی دواخانے کے اصولوں کے مطابق دواخانے میں رہنے کی اجازت دی ہے۔ سماجی جہدکار اس وقت تلوجہ جیل میں زیر دریافت قیدی کے طور پر محروس ہیں۔ انہیں پڑوسی علاقے نوی ممبئی میں ماویسٹوں سے تعلق کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے۔ 81 سالہ وراوڑا راؤ نے درخواست ضمانت داخل کی تھی اور انہیں فوری طور پر ممبئی میں علاج کے لیے ناناوتی ہاسپٹل منتقل کرنے کی بھی رد درخواست دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہیں نیورولوجیکل اور دیگر جسمانی عارضہ لاحق ہے۔ جون 2018 میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ مدھیہ پردیش حکومت لو جہاد قانون وضع کرنے جا رہی ہے۔ اس کے لیے قانون ساز اسمبلی میں بل لایا جائے گا۔ لو جہاد کی ترغیب کرنے والوں کو 5 سال کی قید کی سزا ہوگی اور ساتھ ہی اس طرح کی شادی کرنے والوں کا ساتھ دینے والوں کو بھی برابر کی سزا دی جائے گی۔ مذہب بدلنے والوں کو ضلع کلکٹریٹ میں 1 مہینہ پہلے درخواست دینی ہوگی۔ لو جہاد قانون کا خیر مقدم کرتے ہوئے بعض مسلم تنظیموں نے کہا کہ ہم حکومت کے فیصلے کا استقبال کرتے ہیں، لیکن لو جہاد قانون میں جہاد لفظ کا استعمال کیے جانے پر مسلم تنظیموں میں ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ حکومت کے موقف کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مسلم تنظیموں نے کہا کہ اس قانون سے شہریوں کو آئین میں دیے گئے حقوق کی خلاف ورزی ہوگی۔ آئین میں سبھی شہریوں کو اپنے پسند کا مذہب اختیار کرنے کی آزادی دی گئی ہے اور لفظ جہاد قانون میں لفظ جہاد کا استعمال غلط ہے۔ افسوس اس بات کی ہے کہ مسلم لڑکی کی ہندو لڑکے سے شادی کو گھر واپسی کہا جاتا ہے، لیکن جب ہندو لڑکی مسلم لڑکے سے شادی کرتی ہے تو اسے لفظ جہاد کا نام دیا جاتا ہے، جو غلط ہے۔ کووڈ-19 وبا کی تیسری لہر کے درمیان دہلی ہائی کورٹ نے آج عوامی مقامات جیسے تالابوں، دریا کے کناروں اور مندروں پر چھٹ پوجا منانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ کسی تہوار کو منانے اور کسی مذہب پر عمل کرنے کے لیے پہلے زندہ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ دہلی کے ساکنین کی صحت حق بالاتر ہے اور چھٹ پوجا منانے کی اجازت دینے کا لازمی نتیجہ انفیکشن کے بڑے پیمانے پر پھیلنے کی صورت میں برآمد ہوگا۔ جسٹس ہیما کوہلی اور سبرامنیم پرساد پر مشتمل بینچ نے کہا کہ سماج کے تمام طبقات کے مذہبی جذبات کا لازماً احترام کیا جانا چاہیے، لیکن تہوار منانے کے حق پر بڑے پیمانے پر عوامی صحت اور زندگی کے حق کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ کانگریس قائد سیف الدین سوز نے آج کہا کہ جموں کشمیر کی اصل دھارے کی سیاسی جماعتوں کے اتحاد کو گینگ قرار دیتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ہندوستان اور اس کی جمہوریت کی توہین کی ہے۔
अमित शाह ने गुज़िश्ता रोज़ अपने एक ट्विटर पैगाम में जोर देकर कहा था कि जम्मू कश्मीर हमेशा से हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा रहा है और रहेगा। उन्होंने मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके की सियासी जमातों को गपकार गैंग करार दिया था और कहा था कि ये एक नापाक आलमी गठबंधन है जो मुल्क के कौमी मफाद के खिलाफ है। सैफुद्दीन सोज ने अपने एक बयान में कहा कि यह अमर वाक़ बदबख्ताना है कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को इतना नीचे गिरना पड़ा और कश्मीर की असल धारे की सियासी जमातों को गैंग करार देना पड़ा। मरकज़ की मौजूदा हुकूमत ने पहले ही हिंदुस्तान में हुक्मरानी के निज़ाम को अजीम नुकसान पहुंचाया है। वो ये समझती है कि बीजेपी ही हिंदुस्तान के जमहूरी निज़ाम की वाहिद मुहाफिज है। बहरहाल हकीकत इसके बरअक्स है। छठ पूजा को हिंदुओं का एक अजीम और मुक़द्दस त्यौहार समझा जाता है, लेकिन इस त्यौहार के बारे में मुस्लिम फ़िरक़े के लोगों का एक ही अक़ीदा है। इसकी एक मिसाल पटना शहर के खजीकिला के आदर्श घाट में देखने को मिली, जहां दर्जनों मुस्लिम ख़वातीन ने गंगा के किनारे छठ घाट की सफाई की। साबिक़ वार्ड काउंसलर मुमताज़ जहां की क़यादत में दर्जनों मुस्लिम ख़वातीन ने अपने हाथ में झाड़ू लेकर छठ घाट की सफाई की और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का पैगाम दिया। मुमताज़ जहां ने कहा कि छठ पूजा के मौके पर मुस्लिम ख़वातीन का एक ग्रुप पिछले 18 सालों से सफाई मुहिम चला रहा है ताकि छठ पूजा के मौके पर किसी किस्म की कोई तकलीफ किसी को ना हो। साबिक़ वार्ड काउंसलर ने कहा कि मुआशरे में कुछ लोग ज़ात पात और फ़िरक़े के नाम पर इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी ये कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। छठ के त्यौहार को बाहमी मोहब्बत और भाईचारे का त्यौहार करार देते हुए उन्होंने तमाम अक़ीदतमंदों को छठ पूजा की मुबारकबाद पेश की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार इस आला ओहदेदार को बर्खास्त कर दिया है जिसने इंतखाबात में इनके धांधली के दावों की सख्ती से तरदीद की थी। ट्रंप ने ट्वीट के जरिए ऐलान किया कि उन्होंने साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर क्रिस को इनके ओहदे से फौरी तौर पर बरतरफ कर दिया है। CIA से अमेरिका में महकमा दाखिले के मातहत काम करता है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते वाक़यात के पेश नज़र मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान समेत 9 मुस्लिम ममालिक के लिए वीज़ा देना बंद कर दिया है। मुस्लिम ममालिक के अलावा दीगर ममालिक भी शामिल हैं। इसी तरह जुमला 12 ममालिक के लिए विजिट वीज़ों की इजराई मुअत्तल कर दी गई है। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में कोरोना केसेस के हवाले से दूसरे नंबर पर है। इसका नाम पाबंदी वाली फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने जिन 10 मुस्लिम ममालिक के शहरियों के लिए विजिट वीज़े बंद कर दिए हैं, इनमें पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, यमन, शाम, इराक, सोमालिया, लीबिया, केनिया और अफगानिस्तान शामिल हैं। UAE ने तमाम एयरलाइंस कंपनियों को हिदायत दी है कि वो कोरोना से मुतासरा मुल्कों के मुसाफिरीन को ना लाए। ये पाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगी। अबू धाबी के वली अहद और मुत्तहिदा अरब इमारात की अफवाज के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इजरायली सदर रिवोलियन को बाज़ाब्ता तौर पर अपने मुल्क के दौरे की दावत दी है। जवाब में इजरायली सदर ने भी इन्हें सहियोनी रियासत के दौरे की दावत दी है। दोनों मुल्कों के दरमियान अमन मुआहदे के बाद से मुतअद्दिद खबरें सामने आ रही है। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत किए हैं। TRS ने GHMC इंतखाबात के लिए मंशूर की इजराई अमल में लाई है। अक़लियतों की तरक्की व बहबूद के मामले में अहद की पाबंद रहने का ऐलान करते हुए गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात करने और तमाम ईदें व त्यौहारों को सरकारी सतह पर मनाने के साथ 2 दिन की सरकारी तातील का ऐलान करते हुए इनकी खुशियों को दोबाला किया गया है। अनक़रीब सारे शहर हैदराबाद में मुफ्त वाईफाई की सहूलत फराहम की जाएगी। 1900 करोड़ रुपए के मसारिफ से 280 किलोमीटर तक मिशन भागीरथी की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। 4 नए ऑडिटोरियम तामीर किए जाएंगे। GHMC के हुदूद में मौजूद तमाम लाइब्रेरीज को असरी सहूलतों से लेस किया जाएगा। हैदराबाद में असरी सहूलतों पर मुश्तमिल स्टेडियम तामीर करते हुए खेलकूद की तमाम सहूलतें फराहम की जाएगी। 130 करोड़ रुपए के मसारिफ से 200 मिसाली मार्केट्स कायम किए जाएंगे। उस्मान सागर, हिमायत सागर, हुसैन सागर यानी टैंकमेंट के अलावा मूसा नदी की खूबसूरती में इजाफा करते हुए पानी को साफ करने का मंसूबा तैयार किया गया है। अक़लियतों की समाजी, मुआशी, तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरीज ने हुकूमत को जो सिफारिशात पेश की है, इस पर अमलावरी के लिए हिकमत अमली तैयार की जा रही है। हुक्मरान TRS पार्टी ने GHMC इंतखाबात के लिए अपनी पहली फहरिस्त में 105 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन के बशमुल 16 मुस्लिम उम्मीदवार इस फहरिस्त में शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर KCR की मंजूरी के बाद पहली फहरिस्त जारी कर दी गई है। दूसरी और ख़तई फहरिस्त 19 नवंबर को जारी होने का क़वी इम्कान है। पार्टी ज़राए ने बताया कि चीफ मिनिस्टर KCR का लकी नंबर 6 है, इसलिए पार्टी ने पहली फहरिस्त में 105 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। 2016 में मुनक़िदा GHMC इंतखाबात में TRS ने 150 के मुंजमला 99 बल्दी डिवीजन्स पर कामयाबी हासिल की थी। इस मरतबा 110 बल्दी डिवीजन्स पर कामयाबी हासिल करने का KCR ने दावा किया है। रियासती इलेक्शन कमीशन ने शहर हैदराबाद में सैलाब मुतासरीन को दी जाने वाली 10,000 रुपये की इमदाद पर फौरी रोक लगाने का अहकाम जारी करते हुए इस अमल को रोक देने की हिदायत दी, जिसके बाद शहर हैदराबाद के कई मीसेवा मराकिज़ पर जहां हज़ारों की तादाद में हुकूमत की जानिब से फराहम की जा रही 10,000 की इमदाद के हुसूल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल के लिए कतारों में खड़े थे, इन लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ा।
गुज़िश्ता दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने सैलाब मुतासरीन को फराहम की जाने वाली इमदाद की इजराई के सिलसिले को जारी रखने की इजाज़त फराहम की थी, लेकिन आज रियासती इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक का हवाला देते हुए सैलाब मुतासरीन को फराहम की जा रही इमदाद को रोक देने की हिदायत दी है। जीएचएमसी इंतखाबात के लिए नामजदगी के अदखाल के पहले दिन 17 उम्मीदवारों ने 20 पर्चे नामजदगियां दाखिल की है, जिनमें टीआरएस से 6, बीजेपी से 2, कांग्रेस से 3, तेलुगु देशम से 5 और 3 आज़ाद उम्मीदवारों के अलावा मुस्लिम जमात से 1 पर्चा नामजदगी दाखिल हुआ है। जीएचएमसी के सर्कल दफातर में रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से पर्चा नामजदगियां कबूल की जा रही है। 20 नवंबर तक पर्चे नामजदगी कबूल किए जाएंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तमाम सर्वे टीआरएस के हक में हैं। जीएचएमसी इंतखाबात में टीआरएस 110 बल्दी डिवीजन पर कामयाबी हासिल करेगी। बीजेपी का जवाल हैदराबाद से शुरू होगा। हैदराबाद के सैलाब मुतासरीन के लिए मरकजी हुकूमत ने 1 रुपये की मदद नहीं की। हुकूमत की जानिब से मीसेवा मराकिज़ से मुतासरीन में 10,000 रुपये की इमदाद दी जा रही थी, जिसको बीजेपी ने रुकवा दिया। तेलंगाना भवन में मुनक़िदा टीआरएस लेजिस्लेटिव पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जीएचएमसी पर टीआरएस का कब्जा बरकरार रहेगा। जितनी भी सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं वो सब की सब टीआरएस के हक में हैं। उन्होंने पार्टी कायदीन को मशवरा दिया कि वो इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम को बताएं कि मरकजी हुकूमत ने हैदराबाद के सैलाब मुतासरीन के लिए 1 रुपये की मदद नहीं की, लेकिन बीजेपी कायदीन मदद करने की झूठी तशहीर कर रहे हैं। इसका पार्टी कायदीन मुंह तोड़ जवाब दें। कोरोना बहरान से हम परेशान थे, हमारे जीएसटी बकायाजात भी नहीं दिए, फिर भी तेलंगाना हुकूमत मीसेवा मराकिज़ से मुतासरीन की मदद कर रही थी। इसमें भी बीजेपी ने रुकावटें पैदा कर दी है। वो बीजेपी के खिलाफ हैदराबाद से जंग का आगाज कर रहे हैं। जीएचएमसी इंतखाबात के पेश नज़र कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने असला रखने वालों को हिदायत दी कि वो अपने हथियार जमा करवा दें। पुलिस ने इजाज़त के बगैर जुलूस और रैलियां शहर में निकालने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इलामिया जारी करते हुए तमाम लाइसेंस वाले हथियार रखने वालों से ख्वाहिश की कि वो 19 नवंबर से पहले मुतालिका पुलिस स्टेशन या मिजाज असला के डीलर्स के पास अपने हथियार जमा करवा दें। नाकामी पर कार्रवाई की जाएगी। इसी दौरान कमिश्नर पुलिस अच्छा कुंडा ने भी तमाम असला रखने वालों से ख्वाहिश की है कि वो जीएचएमसी इंतखाबात के पेश नज़र मुतालिका पुलिस स्टेशन या फिर जीएचएमसी के मिजाज असला डीलर्स के पास जमा करवा दें।